Shall we start? Hello. Hello. Yes, sir. You can start with your lecture. Okay. Students, please pay attention. Good afternoon, all. I am Prashant, Dr. Prashant Pandey from uh, YCCE, and I'm going to cover the topics related with pile foundations, uh, bearing capacity or load carrying capacity of pile, and settlement of pile. Most of the students, means all of you, have gone through the pile foundation chapter in geotechnical engineering 2 or foundation engineering. Here, and just brush up your ideas and some additional topics which has not been covered in regular geotechnical engineering, which are important in gate point of view. That is settlement of pile foundation, which has not been covered in the regular geotechnical engineering too. So today we will see that numericals of settlement of pile group. So initially we start with the load carrying capacity of pile, which let's have presentation. All of you know about classification of soil and what are the various types of soil pile. We start from the load carrying capacity of pile. See, the load carrying capacity of pile, ultimate bearing resistance, it is which is indicated by QU or QUP, is the maximum load which can be carried by a pile, and the load carrying capacity of pile is determined by dynamic formulae, static formulae, pile load test, and penetration test. So see here, first we will cover dynamic formulae, which is in our first number in our list. So this is the dynamic formula, then static formula, then pile load test. This is not has been a part of UG. This is covered in post graduation, or it is required in post graduation, but we should have an idea that penetration test is also there for determining pile capacity. So first we will see dynamic formula. In dynamic formula, two formulas are there. First is engineering news formula, and second is Hilly's formula. See, engineering news formula is proposed by A.M. Willington in 1818, and its general form is in terms of allowable load QA, that is QA WH FS plus C, in which W indicates weight of hammer, H indicates height of fall, F indicates factor of safety, then S and C new for us final set per blow, or it is the centimeter per blow for last 5 blows of drop hammer. C is the empirical constant. It is equals to 2.5 for drop hammer,
and 0.25 centimeter for single load or double acting hammer. For drop hammer, the formula will be rewrite as WH, same formula. This is standard generalized form, and this is for a particular case. This for drop hammer, it is QA is equals to WH upon 6 into S plus 2.5. That is, in which C is 2.5 for drop hammer. That's why it is taking 2.5 here. सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए वो 0.25 और डबल एक्टिंग के लिए भी 0.25. ओनली डबल एक्टिंग में W प्लस AP एक एडिशनल आता है बिकॉज इन दिस इफेक्ट ऑफ पिस्टन एरिया एंड steam pressure has been included. So W, as we know, capital W is weight of hammer. A means effective area. ये एडिशनल रहेगा यहाँ पे. P is equals to mean effective. वो गिवन रहेगा आपको न्यूमेरिकल में. So these three formulas you have to learn or remember. Then Healy's formula. Healy's formula is also used for determining pile capacity in case of dynamic loading condition. And this is also accepted in Indian standard, that is IS 2911 part 1 1964. Gives the following formula based original expression of based on original expression of Healy. So let's see some numericals based on these formulas. So here first we'll see the numerical based on dynamic formula. In this, wooden pile is driven मतलब वो डायनेमिक में आएगा. ड्रिवन विद ड्रॉप हैमर ये इंडिकेट करता है कि ये डायनेमिक का न्यूमेरिकल है. और वेट ऑफ हैमर दिया है, फ्री फॉल दिया है H, ये W. देन पेनिट्रेशन फॉर लास्ट ब्लो मीन्स S चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये mm में दिया, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला. इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला क्या था फॉर ड्रॉप हैमर? इन केस ऑफ ड्रॉप हैमर, WH अपॉन F इंटू S प्लस C QA. पुट करेंगे वैल्यूज 20 इंटू H 1, लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, ये भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा. So it means we have to put the values of all the parameters in one unit. तो H और S ये दोनों सेंटीमीटर में पुट करना है. यहाँ पे H दिया है 1 मीटर में, तो इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया. You will get like this. H is equals to 100 centimeter, S is equals to 0.5 सेंटीमीटर. उसमें दिया है 5 mm, इसको कन्वर्ट किया हमने 0.5 सेंटीमीटर. और C की स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर ड्रॉप हैमर 2.5 इन सेंटीमीटर. By putting the value, we will get the value of QA as 111.1 kilonewton. So this type of simple numericals may ask in examination. That's why we should remember this formula. Likewise, some other formulas are there. इसमें भी आपको ये सिंगल एक्टिंग हैमर के लिए दिया है. सिंगल एक्टिंग हैमर के लिए जो पैरामीटर्स है वो फॉलो करना पड़ेगा हमें. We just have to put the values. सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए फार्मूला यूज करना है और हमें वैल्यूज निकालना है. वैसे हम हर एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू कवर, सो दैट वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स. इन हीलीज फार्मूला, हीलीज फार्मूला में QF की वैल्यू दी है. सॉरी, इन फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ QF, नॉट अलाउेबल. इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके नहीं दिया है, लेकिन हम बाद में उसको डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना पड़ेगा. यहाँ पे जो एक एडिशनल जो पैरामीटर्स है वो एफिशिएंसी ऑफ हैमर एंड एफिशिएंसी ऑफ पाइल.
that is NH and NB, sorry, hammer blow. NB means efficiency of hammer blow. NH into WH NB upon S plus C by 2. बाकी के पैरामीटर सेम है, W है, H है. W means weight of hammer, H is height of fall, S is again set per blow for last 5 blows. C is the total elastic compression. यहाँ पे C जो है वो total elastic compression करके दिया है, which will be summation of elastic compression of dolly, packing material and pile and soil respectively. तो ये सब C जो है वो तीन चीजों से के इलास्टिक कंप्रेशन से रिलेटेड करता है कोएफिशिएंट. Then NH is taken as 65% for some double acting hammer and 100% for drop hammer released by trigger. अब अगर आपको इसमें सीधा सीधा ये रखना है कि अगर NH दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 100% एफिशिएंसी, मतलब उसकी वैल्यू 1 ले लेना है. NH की वैल्यू, if not given then we can put value of N as 1 means 100% efficiency. NB के दो फार्मूले हैं in for the case W is greater than EP and W is less than EP. NB is equals to W plus E square P upon W plus P. NB is equals to W plus E square P upon W plus P minus दिस पैरामीटर. ये यहाँ पर डिफरेंस है, ये दो फार्मूले हैं, ये तो सेम है, लेकिन NB फॉर W इज लेस देन EP, उसमें ये एडिशनली उसको सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जितना पैरामीटर सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स सी वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द Hilly's formula. This is from BC Punnia. A reinforced concrete pile weighing 30 kilonewton, inclusive of helmet and dolly, is driven by a drop hammer weighing 40 kilonewton and having an effective fall of 0.8 meter. The average set per blow is 1.4 centimeter. एक एक पैरामीटर देखेंगे. वेट रेनफोर्स कंक्रीट का वेट, पाइल का वेट मतलब P लिया जाता है, ये P रहेगा, और हैमर का वेट मतलब W लिया जाता है, ये W रहेगा, ये P. और हाइट ऑफ फॉल दिया है 0.8. हाइट ऑफ फॉल इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल H. तो कैपिटल H 0.8. एवरेज सेट पर ब्लो, हाँ यहाँ पे ड्रॉप हैमर दिया है, मतलब जो NH है वो 1 हो जाएगा. ड्रॉप हैमर अगर दिया है तो NH 1 होता है, 100% एफिशिएंसी, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा. H इज इक्वल टू 0.8, उसको सेंटीमीटर में नोट किया. S दिया है 1.4 सेट पर ब्लो, ये S की वैल्यू है. C की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.25 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं, टोटल टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन C की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर ये दी है. ये E की वैल्यू है, स्मॉल e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले कंडीशन चेक करना है W इज ग्रेटर देन EP और नॉट. तो वो ग्रेटर देन EP है तो ये फॉर यहाँ पे हमने कंडीशन W इज ग्रेटर देन EP, तो NB के लिए कौन सा ये फॉर्मूला लेना है, W प्लस E स्क्वायर P अपॉन W प्लस EP, W प्लस P 40 प्लस 30 इंटू 0.5 वैल्यूज पुट किए. E मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज पुट किए, 0.579 आया. देन QF इज इक्वल्स टू जो फार्मूला दिया था NH WNB अपॉन S plus C by 2. By putting values, we get the answer as 830 kilonewton. So this is value of QF. QF मतलब ultimate or failure load.
QF को कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय QA में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना पड़ता है, QU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस that will be 830 by 2, that is 415 kilonewton. So this type of simple type of numericals you can go through this. Then static method. Static method में QU is divided into point resistance and skin resistance. QP ये काय के लिए है, पॉइंट और टिप रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं. तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस हो गया और इसको टिप बोलेंगे, और ये स्किन रेजिस्टेंस हो गया QS. ये QN और QP और QS का समेशन मतलब टोटल अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है. तो then QP is capital QP is small qp into AP, and QS is FS into AS. ये FS मतलब आप इसको QS AS भी बोल सकते हैं. Let's see one numerical based on this. 30 centimeter diameter concrete pile is driven into a homogeneous consolidated clay deposit, that is CU is equals to 40 kilonewton. So 30 centimeter diameter means this is the diameter of concrete pile, and CU is 40, alpha is 0.7, embedded length is 10 meter, estimate safe load means Q, safe load means QA. QA निकालना है तो पहले हमें QU इस फॉर्मूले से लेना है. अब ये फॉर्मूला किसका है, वही है जो QP plus QS. इट मीन्स it is the summation of QP plus QS. QP is equals to CNC AP plus अल्फा C bar AS. तो QP क्या हो गया, CNC AP प्लस अल्फा इंटू C bar AS, ये हो गया QS. तो इसकी वैल्यूज 40 इंटू 9 इंटू पाई बाई 4.3 स्क्वायर. 40 C कितना है 40, NC डायरेक्टली लेना है 9, और पाई ये है एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4, बिकॉज पाइल इज लाइक दिस. तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया सर्कुलर रहेगा. 30 सेंटीमीटर डाया है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो पाई इंटू 30 स्क्वायर मीन्स 0.3 स्क्वायर, बिकॉज इट इज टेकन इन मीटर स्क्वायर बाय 4. अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगी 0.7. 40 CU, जो C यहाँ पे लोगे सेम C की वैल्यू यहाँ पे लेना है. देन पाई DL means surface area of pile. Surface area of pile is pi d into L. तो ये pi d is diameter 0.3, L length of pile 10 is equals to 289.2 kilonewton. ये हो गई वैल्यू QU की. उसके बाद QA is equals to QU upon 2.5. तो QU 289 divided by 2.5. अगर F की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ QU एज 2.5 डायरेक्टली और एज्यूम, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ QA. तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं. ऐसे ही
दिस इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल में अगर बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। सैंडी सॉइल मतलब कोहेजनलेस सॉइल, तो उसमें क्यू अल्टीमेट लोड जो है वो ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। यहाँ पे क्यू यू इज इक्वल टू क्यू एन क्यू ए पी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n k सिग्मा वी आई tan डेल्टा ए एस आई। तो न्यूमेरिकल उसके बेस जिस कोहेजनलेस सॉइल के लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें कंक्रीट पाइल 30 सेंटीमीटर डाया, हमें ये फार्मूला यूज करना है। उसके लिए कौन सा फार्मूला था? सी एन सी ए पी प्लस अल्फा सी बार ए एस। यहाँ पे सी एन सी ए पी था, यहाँ पे क्यू एन क्यू ए पी है, और ये जो पैरामीटर स्किन का सरफेस रेजिस्टेंस का वो अल्फा सी बार ए एस था। वहां पे क्ले में ये अल्फा सी बार ए एस था, ये सैंड में यहाँ पे अलग दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बियरिंग कैपेसिटी सैंड के लिए निकालना है कि क्ले के लिए निकालना है। Let's see one numerical for understanding that concept of cohesionless soil. Concrete pile 30 centimeter diameter is driven into a medium dense sand pile is equals to 35 gamma is equals to 21 k equals to 1। ये सब पैरामीटर्स दिए हैं और उसमें सेफ लोड निकालना है, टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यू ए। तो पहले आपको क्यू यू निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले तो फाई इक्वल्स टू 35 डिग्री के लिए डीसी बाई बी की वैल्यू कितनी रहती है वो आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। 35 डिग्री, देन गो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जाने के बाद आपको डीसी बाई बी की वैल्यू मिलेगी। ये नियरली 12 आ रही है तो ये डीसी बाई बी 12 लिया, और डीसी बाई बी, बी इज, बी मतलब होता है डायमीटर ऑफ पाइल। यहाँ पे बी मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ पाइल। तो डायमीटर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो डीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डीसी की वैल्यू 3.6 मीटर। उसके बाद सिग्मा वी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो 3.6 जो DCI है वो DC लेना है और मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये DC की वैल्यू है ना, तो DC मल्टीप्लाइड बाय 21 मीन्स यूनिट वेट ऑफ सॉइल, you will get the value of sigma v. The value of NQ is taken from Berzonzev's curve। तो ये कर्व है, ये कर्व का 35 डिग्री के लिए इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू नियरली 60 के आसपास आती है। तो NQ की वैल्यू 60 ली गई। Most of the time these values are given in examination, you just have to do the calculations only. So you should have the sequence of solving this numerical. So now you take this formula and put the values। Q की वैल्यू कितनी है? 75.6। दिस इज नथिंग बट Q। इसको Q की जगह पे भी ये वैल्यू लेना है। 75.6 into 60 means NQ, Q NQ, then pi d square by 4 plus K tan delta area of sigma v diagram and perimeter of pi। तो ये टर्म सॉल्व करने के बाद
सॉरी ये एक टर्म हो गई। और उसके बाद के की वैल्यू कितनी है 1, tan डेल्टा की वैल्यू 0.7, एरिया ऑफ सिग्मा वी डायग्राम ये। सिग्मा वी डायग्राम मतलब क्या है, तो आपको पहले पाई लेना है, उसके ऊपर प्रेशर डायग्राम निकालना है। प्रेशर डायग्राम कैसे रहती है उसकी, कुछ इस तरह प्रेशर डायग्राम रहती है। तो एक ट्रायंगल रहता है और दूसरा रेक्टेंगल रहता है। ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, तो 3.6 डीसी तक ट्रायंगल रहेगा, डीसी की वैल्यू तक ट्रायंगल रहेगा। और उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, 8 में से 3.6 गया 4.4, ये डीसी की वैल्यू जिसका डिस्टेंस हो गया। उसके बाद 4.4, तो इसका एरिया निकालना है। डीसी मतलब 3.66 है, 3.6 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना रहेगा इसका, सिग्मा वी की वैल्यू, सिग्मा वी डायग्राम है ये, तो सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है 75.6, तो ये 75.6 उसका बेस हो गया। सेवेंटी 75.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 प्लस हाफ बेस 75.6 हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है 3.6, तो ये देखो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया इंटू पाई डी, पेरीमीटर का पाई का पेरीमीटर, डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर, तो उसका सरकमफरेंस कितना हो गया 0.3 into pi. After solving you will get this value, this is value of QU। उसके बाद Q A equals to QU upon 2.5। तो इस तरह से आपको पाइल का पाइल कैपेसिटी इन सैंड निकालना है। तो कुछ उसी टाइप के न्यूमेरिकल है। हाँ, इन केस ऑफ वाटर टेबल, अगर उसमें वाटर टेबल रहता है तो क्या करोगे, तो वाटर टेबल अगर रहता है तो जहाँ पे गैमा है वो गैमा में से 10 माइनस करना। गैमा कहाँ पे यूज हुआ था, सिग्मा वी में, सिग्मा वी में गैमा यूज हुआ था। वाटर टेबल की डेप्थ देख लेना 2 मीटर, 2 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, तो अबो 2 मीटर मतलब सिग्मा वी जब कैलकुलेट किया था तो 3.6 को लेके कैलकुलेट किया था यहाँ पे 3.6। अब हो क्या रहा है, ये 3.6 की लेवल है, पानी कितना मीटर 2 मीटर बिलो है इतना, तो इतने लेवल के लिए क्या लगेगा गैमा माइनस 9.81, और उसके ऊपर सिंपल गैमा रहेगा, उसके ऊपर मतलब वो डेप्थ है 2 मीटर। तो ये ऐसी केस हो गई वो, ये अगर पाइल है which is embedded into the soil and total depth is 8 meter, जिसमें से डीसी की वैल्यू है 3.6, और ये 4.4 बची। अब यहाँ पे वाटर टेबल की लेवल 2 मीटर डेप्थ पे है, ये 2 मीटर डेप्थ पे, तो सिग्मा वी 2 इंटू 21 और बचा हुआ 3.6 में से 2 गया तो 1.6 बचता है, मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 10। बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं रहता। अगर वाटर टेबल आता है तो आपको यूनिट वेट में से 10 माइनस करना। ये स्टैटिक लोड स्टैटिक मेथड
इन क्ले सॉइल, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके देखा है। ये अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पाइल सेटलमेंट, आपके सिलेबस में पाइल सेटलमेंट भी है, जो हम सेटलमेंट पढ़ते नहीं है इन जनरल। इसमें सेटलमेंट कैलकुलेट करने के पहले आपको ऐसी डायग्राम दी रहेगी। तो सी दिस, इतना पार्ट आपको गिवन है, ये जो कलर्ड पार्ट नहीं है, ब्लैक में है, वो सब दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका सेटलमेंट निकालने के लिए बोला है। और ये फ्रिक्शन पाइल है 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड द नेट लोड वाज 2000, एस्टिमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखो एक एक स्टेप कैसे सॉल्व की गई है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहले क्या करना है, तो सिग्मा 0 एट पॉइंट ए, दिस मिडल ऑफ फर्स्ट क्ले लेयर। पहली क्ले लेयर कौन सी है, ये यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड क्ले लेयर यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पहले तो सिग्मा 0 निकालना है एट पॉइंट ए। 3 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 19 माइनस 10 प्लस 8 इंटू 10। अब ये जो है, ये कैसे निकाला जाता है, सिग्मा 0 इज इक्वल टू, ये फार्मूला उसका, गैमा इंटू जेड। गैमा 16 है और उसकी ये इनिशियल लोड है ना, इनिशियल लोड मतलब इनिशियल प्रेशर मतलब सिग्मा 0। तो 3 इंटू 16, देखो 3 इंटू 16 कौन से लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे निकालना है। फर्स्ट लेयर का सेंटर पहले निकाल लेना। फर्स्ट लेयर के सेंटर पे, फर्स्ट लेयर के सेंटर पे यहां से 3 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और फिर यहाँ पे आता है 5 मीटर। तो यहां से यहां तक 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे वाटर लेवल बता रहा है, तो वाटर लेवल आने की वजह से 19 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। और ये जो लेयर है कौन सी, ये 2 मीटर वाली, वो 19 की है। 2 मीटर वाली 19 इंटू 19 माइनस 10 इंटू 2। और अब बचती कितनी है, ये 5, यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो इसके आधे में अपने को सेटलमेंट, पहले इनिशियल प्रेशर यहाँ के लिए निकालना है, सेंटर ऑफ फर्स्ट क्ले लेयर। तो यहाँ से यहाँ तक 5 प्लस 3 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय गैमा, ये कौन सा है, गैमा सैट दिया है 20। तो 20 माइनस 10, 8 इंटू 20 माइनस 10, 10। So you will get initial pressure sigma 0 at point A at the middle of first layer। ऐसी आप सेकंड लेयर को अगर देखते हैं तो उसका सेंटर लो, ये उसका सेंटर हो गया। यहां तक ये ऊपर से चलना है, यहां तक आपको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते आना है हाइट को। लेकिन वो देखना है कि यूनिट वेट चेंज हो रहा है क्या, या फिर पानी वाटर टेबल आ रहा है क्या। Here again same 3 into 16, 3 into 16, then 2 into 9 मतलब 2 into 19 minus 10, क्योंकि यहाँ पे पानी आ गया। अब ये इसके नीचे वाली पूरी लेयर पानी में है, तो हर इसमें से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद गैमा सेट यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, तो ये गैमा सेट यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो ये 10 प्लस 3 13, 13 इंटू 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10, 13 इंटू 20 माइनस 10, 10,
बाद में बची हुई लेयर है, नेक्स्ट लेयर है ये वाली, इसका आधा 5 मल्टीप्लाइड बाय गामा सेट 21, लेकिन ये सैचुरेटेड मतलब ये पानी के नीचे है पूरा। यहाँ पे पानी है मतलब पूरे इसमें पानी है, पानी कभी ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे पानी है, ये लेयर पे पानी है मतलब ये पूरी लेयर कवर की है उसने, ठीक है। तो यहाँ के इसके नीचे वाली सभी -10 होंगी गैमा की वैल्यू। तो यहाँ पे गैमा सेट दिया 21 - 10 11 5 into 11। Likewise, we'll get initial pressure at point A and at point B, which are at the middle of layer 1 and layer 2 respectively. Then cross section area of A, क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करना है, ये जो ऐसे पैटर्न दिया है वो फॉलो करना है। अब वो कहाँ से लेना है, तो यहाँ पे दिया है कि जो डिस्पर्शन एरिया है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट है 1/3 ऑफ एल से स्टार्ट होता है कभी भी। इफ नॉट गिवन वी विल हैव टू टेक दिस डायग्राम फ्रॉम 1/3 ऑफ एल। 1/3 ऑफ एल, 1/3 ऑफ 12 कितना होता है, 1/3 ऑफ 12 12 डिवाइडेड बाई 3 4 मीटर। तो ये 4 मीटर हो गया, मतलब 4 मीटर से आपको ये डायग्राम डिस्पर्शन डायग्राम शुरू, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं, लोड डिस्पर्शन डायग्राम और पैटर्न। और 8 मीटर उसके ऊपर वो लेंथ अलग है, और ये लेंथ अभी डिस्पर्शन के लिए हमने निकाली। तो ये 4 मीटर है। अब गैमा सेट नहीं, हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया के लिए क्या करना है, वो जो डिस्पर्शन हो रहा है उसका 1:2 में हो रहा है। तो ये 1:2 में हो रहा है, और हमें ये लेवल पे इतना डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2.5 है। अब ये बचा हुआ है, ये जो है ये कितना है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बनाना, ये ट्रायंगल के हिसाब से आपको निकालना है, या फिर प्रोपोर्शनेटली यू कैन फाइंड आउट कि 1 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है। ये 2 वर्टिकल है, मैं साइड में निकालता हूँ। ये सपोज मिडल ऑफ क्ले लेयर है, एक छोटा सा ट्रायंगल दिया है आपको, 1 वर्टिकल एंड 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। ये प्रोपोर्शन से अपने को चलना है। तो अपने को ये निकालना है x, और ये हाइट अपने को पता है फ्रॉम धिस टू धिस, मतलब ये 5 मीटर है। तो 1 के लिए अगर 2 है तो x के लिए 5 रहना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज 2.5। तो ये 2.5 इतना यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो वो जाएगा 7.5। अब ये स्क्वायर पैटर्न में है, नहीं दिया होगा तो स्क्वायर पैटर्न कंसिडर करके 2.5/2.5 आपको लेना पड़ेगा। तो आपका आता है 7.5। 7.5 मीटर का एरिया है। और अपने को अगर चेंज इन प्रेशर निकालना है एट दैट लेवल, देन 2000 मीन्स दैट लोड, दिस लोड इज गिवन, नेट लोड डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। 2000 लोड दिया है डिवाइडेड बाय 7.5, तो 7.5 लेके हमें सॉल्व करना है। अब ये
डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू 35.56 आता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया एट बी हमें निकालना है, उसके बाद हमें डेल्टा सिग्मा एट बी निकालना है, बी के सेंटर लेयर, बी मतलब ये अभी ये लेयर पे निकालना है। ये ट्रायंगल कंसीडर होगा इतना, ये इतना मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर प्लस 5 मीटर, सॉरी 5 प्लस 10 15, ये 15 हो गया और ये ऐसे ही रहेगा, ये 15 हो गया, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 15 divided by 2, 7.5. Again, this will be x is 7.5 and here it is 7.5. So total will be 7.5 plus 2.5 plus 7.5. तो ऐसे तीनों के एडिशन करने के बाद हमें 7.5, 7.5, 2.5 ऐड करने के बाद हमें ये मिलेगा 2.5, तो 17.5 मिलता है। 7.5 प्लस 7.5 15 प्लस 2.5 17.5। डेल्टा सिग्मा इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 7.5, 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 6.53। तो डेल्टा सिग्मा मिल गया। बस सेटलमेंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली भी। सेटलमेंट इज इक्वल्स टू सी सी एच अपॉन 1 प्लस ई जीरो इंटू लॉग टू द बेस 10 60 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा जीरो। Put the values of CC in first layer and पहले फर्स्ट लेयर के लिए देखते हैं। CC की वैल्यू फर्स्ट लेयर के लिए 0.25 है और E0 की वैल्यू 0.75 है। यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.65 है। फर्स्ट लेयर के लिए पहले देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर के लिए आया है by putting these values 0.135। सेकेंड लेयर के लिए 0.2 इंटू 10/1 प्लस 0.65, यहाँ पे 0.2 दिया है CC और E है 0.65, will get 0.014 and total settlement will be addition of these two, 0.135 plus 0.014, it is 0.149. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Now we are having another 15 minutes. Wait for 1 minute. So likewise, you will have to solve the settlement problems. Now, group efficiency is one topic is there that we'll see within 10 minutes and negative skin friction. So see the group action of pile, the efficiency जो कैलकुलेट करते हैं वो QUG से इंडिकेट करते हैं और that is equals to जो group efficiency है वो number of piles की efficiency is equals to QUG ग्रुप में कैलकुलेट की हुई पाइल लोड कैपेसिटी और n इंटू सिंगल पाइल कैपेसिटी। तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप, एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप।
It is a method of estimating the bearing capacity of group friction piles is to multiply the quantity of is to मतलब we divide it to n into QUP by reduction factor. Okay. उसके बाद एफिशिएंसी जो है वो ये फार्मूले से भी निकाली जाती है, कॉन्वर्ज लेबरे फार्मूला एंड सेलर केनी फार्मूला. इन कॉन्वर्ज लेबरे फार्मूला में 1 माइनस थीटा अपॉन 90 n माइनस 1 अपॉन m प्लस m माइनस 1 अपॉन n. mn क्या है ये? तो m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ पाइल्स इन अ रो, थीटा is tan inverse d by b, where d is the diameter of pile and s is the spacing, d by s. उसके बाद सीलर केनी फार्मूला बहुत कम बार पूछा गया, इसको यूज मत करो, बट यू शुड गो थ्रू दिस फार्मूला, कॉन्वर्स लेबरे फार्मूला. Then Feld's rule is there for calculating the efficiency of pile. According to this rule, the value of each pile is reduced by 1/16th on account of effect of nearest pile in each diagonal or straight row of which the pile in question is a member. तो एक दो पाइल अगर आजू बाजू में ऐसे खड़ी है तो उसकी एफिशिएंसी शेयर होती है 15/16 से. तो वो जो शेयर होती है वो 93.5 एफिशिएंसी उसकी कहलाएगी, 15/16. तो ऐसे 1/16 पार्ट आपको हर पाइल में शेयर करके दिखाना है. यहाँ पे 3 पाइल शेयर हो रही है, 1 2 3, तो 14/6 और 14/6 और 14/6 ऐसे. अब पाइल ग्रुप की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद उसको फाइनलाइज कैसे करते हैं कि फाउंडेशन विल फेल इन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन ग्रुप. तो ग्रुप एफिशिएंसी पर आपको कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरीके से पहले QUG निकालना है और उसको कंपेयर करना है. इस टाइप के न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहता है कि 16 ग्रुप ऑफ पाइल्स, ऐसे 4 4 4, 1 2 3 4, तो ऐसे 16 ग्रुप दिए रहेंगे. और उसके बाद डायमीटर ऑफ पाइल 0.45 and center to center spacing of square pile is 1.5 मीटर. ये 1.5 है टोटल. तो ये टोटल 1.5 नहीं है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. ये 1.5 है. तो ऐसे ही विड्थ ऑफ ग्रुप पाइल कितनी हो जाएंगी, स्क्वायर ग्रुप की विड्थ 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 45, ये उसके डायमीटर की टोटल एडिशनल ये हो जाएगी लेंथ. तो होता कैसे है इन मीटर्स, इट इज 150 इंटू 3 इन सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 495 सेंटीमीटर एंड इट इज 4.95 मीटर. एंड फॉर ग्रुप एक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब ये ग्रुप को कंसिडर करके. अब ग्रुप की विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ 4.95, ये उसकी विड्थ होगी. तो C इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ, मतलब इसका QUG अगर निकालना है तो C मल्टीप्लाइड बाय 4B इंटू L. इसमें
अल्फा की वैल्यू नहीं लेते, और जैसे कि अभी ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि निग्लेक्ट टिप बियरिंग, और अपना फॉर्मूला क्या है, क्यू यू इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग, क्यू पी प्लस क्यू एस। तो टिप बियरिंग निग्लेक्ट बोल दिया तो ये 0 हो जाएगा। बचा क्या, क्यू एस। क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंगल पाइल में अल्फा सी ए एस, या फिर सी अल्फा ए एस, एरिया ऑफ शाफ्ट। इसमें अल्फा की वैल्यू भी 1 ली जाती है इन कैलकुलेटिंग क्यू यूज डायरेक्टली। तो सी इंटू अल्फा 1 लिया, और उसका एरिया मतलब इसका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर इंटू लेंथ 4.95 इंटू लेंथ इज 10 मीटर। तो दिस इज फॉर QU in group. Then for piles acting individually, QUG is equals to N into QUP. अब ये भी QUG था, लेकिन ये डायरेक्ट ग्रुप को लेके निकाला, ये कंप्लीट सेट हमने लिया 4x4 का। अब एक पाइल का निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पाइल करेंगे, नंबर ऑफ पाइल 16 है तो 16 पाइल का कर लेंगे। तो पहले एक पाइल का जब निकालते हैं तो एक पाइल के लिए QS की वैल्यू C अल्फा AS से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला वही है, C अल्फा ए एस। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 50 है, अल्फा की वैल्यू 0.7 m मतलब अल्फा, इंटू पेरीमीटर ऑफ वन पाइल, सरफेस एरिया ऑफ वन पाइल, पाई डी एल, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी 0.45 इंटू लेंथ 10 मीटर। तो आपको ये वैल्यू मिली, और ये कंप्लीट इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 16 से, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 79, और ये 99 किलो न्यूटन। इसमें विच इज द लेस देन द लोड कैरिड बाय ग्रुप एक्शन, वो हमें देखना है। देन द फाउंडेशन विल फेल बाय द पाइल्स एक्टिंग इंडिविजुअली। जिसकी वैल्यू कम आती है वो वैल्यू हमारी फेल्यूर, मतलब हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दैट वैल्यू विल टेक फर्दर कंसीडर फॉर डिजाइनिंग पाइल फाउंडेशन। तो सबसे कम वाली वैल्यू इंडिविजुअल एक्टिंग पाइल के क्राइटेरिया से आई, ग्रुप क्राइटेरिया से अगर आई रहती इधर 600 समथिंग, तो ये नहीं रहती, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी। विच एवर इज लेस दैट विल बी अवर फाइनल वैल्यू। तो इन दिस वे वी विल गेट, ये एक सेटलमेंट का एक न्यूमेरिकल है, वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ टू थर्ड मतलब यहाँ से लेना है डिस्पर्शन। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने जितना कवर किया, because this is from my side. If anybody is having any problem or doubt, they can ask me. We have covered settlement analysis in sand and clays, and dynamic and static formulae in sand and clays. पाइल लोड टेस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें वो प्लेट लोड टेस्ट जैसे ही है। एक बार दिखा देता हूँ आपको।
फाइल लोड टेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट इट इज जस्ट लाइक अ प्लेट लोड टेस्ट ओनली. एक फाइल टेस्ट फाइल पेनिट्रेट की जाती है अप टू डिजायर्ड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इफ दिस इज फाइल, और इसके ऊपर डायल गेज लगाया जाता है. डायल गेज लगाने के बाद इसके ऊपर लोडिंग जैक से या फिर रिएक्शन लोडिंग मेथड से लोड दिया जाता है और लोड सेटलमेंट कर्व निकाले जाते हैं. और सेटलमेंट और ये रीडिंग्स एज पर आईएस कोड 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, देन 1 आवर, 5 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ऐसे डबल डबल टाइम करते करते उस लोड और सेटलमेंट की वैल्यू लेते हैं. शुरुआत में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है लोड सेटलमेंट लेने की, बाद में कम कम की जाती है. और ये इससे फिर हमें लोड, उसको क्यू भी बोल सकते हैं, और सेटलमेंट. साइक्लिक लोडिंग भी मेथड है. एक कंटिन्यूस लोडिंग देते हैं, एक बार लोड देते फिर से रेज करते हैं, देन अगेन लोड विल बी गिवन. उसको साइक्लिक लोडिंग से ऐसे ग्राफ्स मिलते हैं. इस तरह से प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म की जाती है. सॉरी, पाइल लोड टेस्ट ओनली द प्लेट वहाँ पे फीड किया जाता है इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन. यहाँ पे फीड नहीं, डायरेक्टली पाइल, टेस्ट पाइल बोलते हैं इसको. टेस्ट पाइल ड्राइव करके उसके ऊपर लोड कैरिंग कैपेसिटी की टेस्ट की जाती है. Yes, is there any problem to anybody? You can ask me. Hello, students. If you are having any problem, you can ask. I think there is no problem, sir. Okay. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. Okay. And thanks from my side also, and thanks to all of you, all organizing committee, and as well as students, and to Tulsiram Gaikwad College of Engineering, Nagpur, for inviting me for this type of lecture series. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Shall I leave? Yes, sir. Okay.